Yesterday I have discussed with you problems before Indian government when we got independence. There were different kind of problems. कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जिन्होंने हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ना, उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी टू मेक यूनिफॉर्म लॉज. ठीक है, हमारी कंट्री के लिए एक जैसे लॉज बनाने के लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी. ठीक है, देन we have discussed various kind of problems like problem of partition, refugees, where many people they came from Pakistan and they lived here, and it was very difficult for Indian government to give them shelter, employment facilities, land. Okay, so they were regarded as refugees. More than 8 million people were there. Then they were poor, unemployed. At that time, Indian government was have to tackle with they had to tackle with poverty and unemployment problems also. Then problem of princely states, different princely states, like more than 500 princely states were there, who were independently controlled by kings, nawabs and queens. And it was difficult for Indian government to protect our country from them, you know, because these princely states were independent. And at that time when British rule was there, so they were very good friends of them, so that's why they were continued to rule independently. But after the independence, Britishers, they gave them choice that to which group they wanted to join, India or Pakistan. So they wanted to remain alone, but it was difficult for Indian government. So at that time, Vallabhbhai Patel convinced them to join India, and Indian army, they gave protection to them. Then after that, caste inequalities were also there in our country. People keep on fighting on the caste issues, Hindu, Muslim, disunity was there. Many people, they were killed, innocent people, they were killed at that time. Religious, communal violence, clear? Communal violence was there. So this was the main problem at that time people they have to face. And other than this, we can say that many people, they were living in slums areas, and language problem was there. Okay, the whole country, there are different languages were there. Each state has its own language. Food, culture, habits was totally different. So how to give proper rules and regulations, same rules and regulations, how to make rules and regulations same for all the country. And I have also told you that in the year 1948, Mahatma Gandhi, he was assassinated. And even we can say that at that time, Indian government, it was very difficult for them because our country is a newly democratic form of country. And more than 300 years ago, our country was under the control of Britishers. So they left us with very less resources. So we have to manage according to that. हमने उनके according ही manage करना था ना. So it was very difficult for Indian government. So these are the major challenges. Challenges क्यों कहते हैं? Because these challenges Indian government they had to face. हमें face करने पड़ेंगे challenges है ना. तो इसलिए at that time it was very difficult. अब हमने फिर भी no doubt after all these challenges, our Indian government prepare our constitution. Even हमने ये constitution के जो features हैं civics में भी किए हुए हैं. ठीक है, civics में भी हमने किए हुए हैं. बट इसमें हमने historical point of view से बताना है कि हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नो डाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने का प्रोसेस पहले ही शुरू हो गया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स को पता था कि उन्होंने हमें इंडिपेंडेंस देनी है. तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि दिसंबर 1946 हमारी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई. इसका मेन काम क्या था? टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट वाज द मेन एम ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री. इसका मेन काम क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन बनाना. ठीक है, दिसंबर 1946, यानी कि हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो 1946 से ही बनना शुरू हो गया था. ठीक है, और कितना टाइम लगा हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनने में? completed in 1949, November 1949.
ठीक है। 1946 से लेकर 1949 तक हमारी कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया, अडॉप्ट किया, ठीक है। और इम्प्लीमेंट कब हुआ? 26 नवंबर को हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन जो था दैट वाज अडॉप्टेड, लेकिन इम्प्लीमेंट कब हुआ? 26 जनवरी 1950। ये याद रखना। वी गॉट इंडिपेंडेंस, सबसे इंपॉर्टेंट डेट 15 अगस्त 1947। हमारी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयार मतलब बनी कब? 1946। फिर इस असेंबली को मेन काम क्या दिया गया, टास्क दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का। अल्टीमेटली इस असेंबली ने हमारी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कब तक बना लिया था, कब हमने अडॉप्ट किया? 26 नवंबर 1949। फाइनली अब हमने 26 जनवरी सेलिब्रेट करना ना, तो दैट इज रिपब्लिक डे। जिस दिन हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ दैट डे इज रिगार्डेड एज रिपब्लिक डे, 26 जनवरी 1950। क्लियर? और ये हमने मेन याद रखना है कि 26 जनवरी 1950 को क्यों वेट की गई। अगर हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर को अडॉप्ट कर लिया था, आपको याद होगा हिस्टोरिकल डेट 26 जनवरी 1930 को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर किया था, है ना। तो उस डे को याद करने के लिए, उस डे को कमेमोरेट करने के लिए द वेट, यानी कि कितने मंथ्स की वेट की गई? 2 मंथ्स की वेट, नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी। एंड फाइनली हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन कब इंप्लीमेंट हुआ? 26 जनवरी 50। हम इस डेट को क्या सेलिब्रेट करते हैं? रिपब्लिक डे। और हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करना ना हमने, तो आप देखोगे कि किस तरह से दिल्ली में ग्रैंड सेलिब्रेशन होती है हमारी कंट्री जिस दिन रिपब्लिक बनी थी। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है हमारे लिए एक अचीवमेंट है, ठीक है, जिसके लिए कितने ही लोगों ने अपना जो सेक्रीफाइस दिया इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है। तो अब है कि हमारी कंट्री के फीचर्स, कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं हमारी कंट्री के, यानी कि क्या पहले नहीं था, अब हमारी कंट्री में क्या है। इंडिपेंडेंस से पहले मतलब 200-300 ईयर्स तक हमारी कंट्री ब्रिटिशर्स के अंडर रही, ठीक है। एट दैट टाइम वी वर नॉट गिवन कॉन्स्टिट्यूशन, वी वर नॉट इंडिपेंडेंट, बट नाउ आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री वी वर गिवन डिफरेंट काइंड्स ऑफ यू कैन से फ्रीडम्स एंड फीचर्स हमने डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो नंबर 1 सबसे पहले हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है फीचर्स है दैट इज रिटन, इट इज रिटन लेंथी, ठीक है। इसमें हमने क्या बताना है, हम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री इज इन रिटन फॉर्म। रिटन फॉर्म का मतलब है, ठीक है, ये पूरा प्रॉपर जो है इसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो हमारी कंट्री की असेंबली थी जिसने हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उसमें आपने 2 अलग अलग जो है वो मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। एक तो आपने याद रखना है जो असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। And he was the first president of independent India also. Again, Dr. Rajendra Prasad was the president of Constituent Assembly. लेकिन इस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली के ने अलग से एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी, इसी के अंदर कुछ मेंबर्स की, उसको क्या बोलते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी। इस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आपको पता, आपको मैं पूछूं कि हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? दैट आंसर इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है।
जिन्होंने सारा कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट प्रिपेयर करवाया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लेंथी का मतलब होता है टू लॉन्ग। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स, पार्ट्स, शेड्यूल, ठीक है। तो ये हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट फीचर है कि हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन जो है दैट इज इन रिटन फॉर्म, टू लॉन्ग, वेरी लेंथी, एंड ऑल द parts have been explained in various kinds of articles, parts and schedules, ठीक है। तो ये है हमारी कंट्री का फर्स्ट फीचर, दैट इज रिटन एंड लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड फीचर क्या है, यूनिवर्सल अडल्ट franchise. Universal means acceptable to all. Adult means above the age of 18 years. Franchise means right to vote. Clear? It means in our country all people are given right to vote above the age of 18 years. Adult, all adults have been given right to vote above the age of 18 years, irrespective of caste, color, gender, place of birth. किसी की कोई भी कास्ट हो, कोई भी कलर हो, जेंडर जो भी हो, प्लेस ऑफ बर्थ कहीं भी हो, तो दे हैव राइट टू वोट, जो कि 1947 से पहले कुछ ही लोगों के पास था, यानी कि सबके पास नहीं था। लेकिन 1947 के बाद हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में ये रिटन है दैट पीपल विल बी गिवन पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब क्या है, राइट टू वोट, क्लियर। थर्ड, देन इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो कि पहले नहीं था, इक्वालिटी बिफोर लॉ। हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े, हमारी कंट्री के फंडामेंटल राइट्स में लॉ ऑफ इक्वालिटी, आर्टिकल इक्वालिटी जो है जिसमें सारा ये एक्सप्लेन किया गया है। इक्वालिटी फॉर लॉ का मतलब होता है ऑल सिटीजन्स आर इक्वल, सभी बराबर हैं, किसी के साथ कोई भी कास्ट, कलर, डिस्क्रिमिनेशन या किसी के बेसिस के ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अनटचेबिलिटी अबॉलिश कर दी गई है। हमारी कंट्री में जो हायर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में जो डिफरेंस होता था उसको खत्म कर दिया गया, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या होता है कि ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। इंडियन जो हमारा लॉ है वो सबके लिए बराबर है, चाहे मेन है, चाहे वुमेन है, चाहे हायर कास्ट है, चाहे लोअर कास्ट है, ऑल आर इक्वल, इक्वालिटी बिफोर लॉ, एंड दैट हैज बीन रिटन इन द। आप ये बताओगे कि ये जो इक्वालिटी है ये हमारी कंट्री में सभी सिटीजन्स को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स, 6 फंडामेंटल राइट्स गिवन है, तो उसमें राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी दिया गया है जो ये कहता है कि ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड फीचर है जिसमें हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सभी लोगों को बराबर इक्वल माना गया है, किसी के साथ भी कोई भी रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी के बेसिस के ऊपर डिफरेंसेस नहीं होगा। इक्वल अपॉर्चुनिटीज, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है वो प्रोवाइड की गई, ठीक है। देन नेक्स्ट इज, फिर हमने बताना है, वेट फॉर 1 मिनट, गोइंग टू चेक अटेंडेंस। हाँ जी, फिर हमने बताना है दैट स्पेशल प्रिविलेजेस, अगर एक तरफ अगर सभी इक्वल है ना, लेकिन कई बार क्या होता है सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सोर्सेज नहीं होते हैं, सम आर वेरी पुअर, सम आर अनएम्प्लॉयड, है ना। तो सम पीपल दे आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन का मतलब जिनके पास फूड, क्लोथ, शेल्टर भी नहीं होता। तो ऐसे में गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस देते हैं, स्पेशल प्रिविलेजेस टू पुअर पीपल, स्पेशल प्रिविलेजेस। हमारी कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ
जो है वो पुअर पीपल होते हैं उनके लिए कुछ स्कीम्स चलाई जाती हैं, एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स। तो इसमें बताया गया कि गवर्नमेंट, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सम प्रिविलेजेस टू द पुअर पीपल, ठीक है, जो दोज हु आर विदाउट रिसोर्सेज, सो दैट दे कैन आल्सो डेवलप, वो भी डेवलप हो सके, वो भी अपने आप को सोसाइटी में बाकियों के बराबर समझ सके। स्पेशल प्रिविलेजेस टू पुअर पीपल, उनको फूड जो है वो कम रेट पर दिया, सपोज आपने कई बार सुना होगा कि मार्केट से कम रेट पर इनको फूड दिया जाता है, या उनकी कुछ हेल्प की जाती है, या फिर उनको किसी भी तरह से जो है वो एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स दी जाती हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली उनके लिए कुछ मार्केट से कम रेट पर खाना उनको प्रोवाइड किया जाता है, व्हीट, शुगर या राइस या कुछ ऐसी चीजें हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस जो है, उनको कैरोसिन ऑयल दिया जाता है जिनके पास प्रॉपर फ्यूल नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सम प्रिविलेजेस टू द पुअर पीपल, ठीक है। इसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन एक रिजर्वेशन पॉलिसी अडॉप्ट की है, रिजर्वेशन, some seats are reserved for SC ST classes, शेड्यूल्ड क्लास एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कास्ट और कम्युनिटीज जो हैं उनके लिए कुछ, उनको रिजर्वेशन का मतलब होता है कि उनको कुछ रिजर्वेशन दी गई है। अल्टीमेटली इसका मेन मोटिव है कि पहले अगर देखा जाए तो इंडिपेंडेंस से पहले जब हमारी कंट्री में कास्ट सिस्टम होता था, शूद्रास, दे वर रिगार्डेड अनटचेबल्स एंड दे वर नॉट ट्रीटेड इक्वली इन द सोसाइटी। तो उस टाइम पीरियड में कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन का मतलब जो है ये इसलिए रखा गया ताकि ऐसे लोग जो जिन फैमिलीज में मतलब प्रॉपर जो है वो नहीं आगे आ पाते, तो गवर्नमेंट उनकी हेल्प करती है। तो अल्टीमेटली ये रिजर्वेशन पॉलिसी रखी गई थी इनको हेल्प जो है वो देने के लिए, ताकि अगर इन फैमिलीज में से कोई पर्सन आगे नहीं आ पाते हैं तो उनको प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिजर्वेशन, रिजर्व्स जो कैटेगरी है वो दी जाए ताकि ये लोग भी आगे आए, ठीक है। देन इसके बाद है हमारी कंट्री में लॉ बनाने के लिए कुछ लिस्ट जो है वो गवर्नमेंट को फॉलो करनी पड़ती है। ये सारा आपने बच्चे सिविक्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, ये जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, दैट इज कॉल्ड लिस्ट सिस्टम। लिस्ट सिस्टम हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में 4 लिस्ट जो है, लिस्ट मतलब अलग अलग लिस्ट है, यूनियन लिस्ट और सेंटर लिस्ट भी कहते हैं इसको, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, रेजिड्यूरी लिस्ट। सबसे पहले यूनियन लिस्ट और सेंटर लिस्ट। यूनियन और सेंटर लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर लॉ बनाने का राइट किसका है, सेंटर गवर्नमेंट। सेंटर गवर्नमेंट जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फॉर एग्जांपल डिफेंस, आर्मी, करेंसी, ठीक है। तो ये जो टॉपिक हैं, ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो पूरी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनके ऊपर लॉ बनाने का जो राइट है वो किसका होगा, सेंटर गवर्नमेंट का। तो हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में जो 4 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और रेजिड्यूरी लिस्ट, ठीक है। इन लिस्ट में अलग अलग सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, ठीक है। और उन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग जो यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट्स दिए गए हैं इनके ऊपर लॉ बनाने का राइट किसका होगा, सेंटर गवर्नमेंट का। क्यों, क्योंकि ये पूरी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। डिफेंस, कभी आपने सुना है पंजाब आर्मी, गुजरात आर्मी, महाराष्ट्र आर्मी? नहीं, आपने सुना है इंडियन आर्मी, ठीक है। इसका मतलब है पूरी कंट्री से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं या सब्जेक्ट्स हैं जिसमें पूरी कंट्री की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो ऐसे में लॉ बनाने का राइट किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। आगे है स्टेट लिस्ट।
इसमें वो सब्जेक्ट्स हैं जो स्टेट इंपॉर्टेंस के होते हैं। स्टेट इंपॉर्टेंस यानी कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो सिर्फ स्टेट के लिए ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे पंजाब के लिए है सिर्फ, या सिर्फ गुजरात के लिए, जिसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट सिर्फ वही लॉ बना सकती है, उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लॉ बनाएगी, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है उसके ऊपर, वो स्टेट गवर्नमेंट इज फ्री। जैसे पुलिस, इसमें आ गया पुलिस, जैसे ये सुना है आपने पंजाब पुलिस, गुजरात पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, तो पुलिस से रिलेटेड कोई भी लॉ है, ठीक है, पंजाब पुलिस, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर जो है सब्जेक्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, दे आर फ्री। नो डाउट सेंट्रल गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम बनाती है, बट इसमें ये इंडिपेंडेंट है, ताकि स्टेट्स को भी कुछ पावर दी जाए, सीएम को भी कोई पावर दी जाए कि वो इसके रिगार्डिंग लॉ बनाने में फ्री है। देन कंकरंट में आता है बोथ सेंटर एंड स्टेट, जिसमें दोनों ही बना सकते हैं। जैसे एजुकेशन ना इसमें आएगा, अब आप खुद देखो, एजुकेशन दोनों में ही आएगा, सेंटर में भी आएगा, स्टेट में भी आएगा। एजुकेशन अगर देखें सीबीएसई सेंटर में आएगा, पंजाब बोर्ड, अगर पंजाब बोर्ड गए पंजाब में आएगा। सीबीएसई से पॉलिसी सारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, पंजाब बोर्ड से रिलेटेड पंजाब गवर्नमेंट बनाती है, जो पंजाब गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं ना, दोनों ही। बोथ कंकरण मतलब बोथ सेंटर एंड स्टेट कैन मेक लॉज ऑन दी सब्जेक्ट्स जो इसमें दिए गए। रेजिड्यूरी का मतलब होता है लेफ्ट, जो बच गए सब्जेक्ट। अब हमारी कंट्री को जब इंडिपेंडेंस मिली उस टाइम पर में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनकी इंपॉर्टेंस अब नहीं थी, बाद में फील हुई, जैसे आईटी सेक्टर, ये बाद में आया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, साइबर क्राइम, साइबर लॉज, ये सारे जो है किसमें आएंगे, रेजिड्यूरी में। इनके ऊपर लॉ बनाने का राइट किसका होगा, सेंटर गवर्नमेंट। क्लियर। तो ये कुछ लिस्ट हैं जो हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। आपको पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री के लिस्ट सिस्टम का मतलब क्या होता है कि वेरियस लिस्ट आर गिवन एंड अकॉर्डिंग टू दैट इन दिस सब्जेक्ट्स गिवन इन दिस लिस्ट देन गवर्नमेंट दे कैन मेक लॉज। सेंटर में होता है बोथ, सेंटर में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, स्टेट में सिर्फ स्टेट बना सकती है, कंकरेंट में बोथ, और रेजिड्यूरी में सेंट्रल गवर्नमेंट। एक एक सब्जेक्ट याद कर लो, यूनियन लिस्ट में याद कर लो, डिफेंस, रेलवे भी इंडियन रेलवे होता है, तो रेलवे के लिए भी जो भी लॉज है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। देन स्टेट के लिए याद कर लो पुलिस, कंकरेंट के लिए याद कर लो बोथ एजुकेशन, पंजाब बोर्ड एंड सीबीएसई, रेजिड्यूरी में याद कर लो आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साइबर लॉज। क्लियर। सो इस तरह से हमारी कंट्री में लिस्ट सिस्टम का मतलब क्या होता है कि अलग अलग लिस्ट हैं और उनके अकॉर्डिंग लॉ बनाने का जो राइट है वो अलग अलग गवर्नमेंट के पास है। एनी डाउट till now whatever I have discussed, any doubt then I will discuss further। और भी है फीचर्स इसके, और भी हम डिस्कस करेंगे फीचर्स। हरी अब it is clear to you? हाँ जी। लिस्ट सिस्टम के बाद नेक्स्ट फीचर हम डिस्कस करेंगे सेपरेशन ऑफ पावर्स। हमारी कंट्री में गवर्नमेंट की पावर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। और जुडिशरी मींस जजेस को इंडिपेंडेंट रखा गया है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी।
इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि हमारी कंट्री में जजेस जो हैं वो लेजिस्लेचर मतलब लेजिस्लेचर में क्या आता है? प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव में क्या आता है? प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, जो भी मिनिस्टर्स हैं। और जुडिशरी में क्या आता है? जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, सेपरेशन है। सेपरेशन का मतलब होता है पावर एक के हाथ में नहीं है। इंडिपेंडेंस से पहले हमारी कंट्री में ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी मर्जी से रूल चलाते थे, लेकिन हमारी कंट्री में अब क्या किया गया है? पावर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। लेजिस्लेचर, इनका मेन काम क्या है? मेकिंग लॉज, ये लॉ बनाते हैं, मेकिंग लॉज। एग्जीक्यूटिव क्या करती है? इनको इम्प्लीमेंट करती है। एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंट। जुडिशरी क्या करती है? जुडिशरी, जजेस, जो लोग ब्रेक करते हैं लॉज उनको पनिश करते हैं जजेस। पनिशमेंट यानी कि उनको जो है, जो भी केसेस होते हैं उनकी हियरिंग सुनते हैं। और इस तरह से हमारी कंट्री में सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब होता है पावर्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया। कोई पर्सन एक पर्सन डिक्टेटर नहीं है, ठीक है, हर एक के पास पावर्स है। प्रेसिडेंट है अलग है, पार्लियामेंट की पावर्स अलग है, प्राइम मिनिस्टर की अलग है, जजेस की अलग है। तो इस तरह से हमारी कंट्री में जजेस को, यानी कि जो जुडिशरी है उसको इंडिपेंडेंट रखा गया है। किसके कंट्रोल से? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। ये इसलिए रखा गया है ताकि जजेस जो है वो अपना काम बिल्कुल फेयर, अपनी जो जजमेंट है वो बिल्कुल फेयर दे सके। उनके ऊपर किसी भी तरह से मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर्स का कोई भी इंटरफेरेंस या कंट्रोल ना हो। ठीक है, और अगर नहीं होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा? आए दिन जजेस जो हैं उनके ऊपर प्रेशर होगा, तो ऐसे में जो जजमेंट है, ठीक है, जजमेंट जो है वो प्रॉपर फेयर नहीं हो पाएगी और जस्टिस नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमारी कंट्री में सिस्टम रखा गया है, पावर्स जो हैं उनको सेपरेट किया गया है ताकि हर पर्सन, हर डिपार्टमेंट, हर ऑर्गन अपना अपना काम अपनी अपनी मर्जी से, अपनी तरफ से इंडिपेंडेंटली कर सके। क्लियर? सो इस तरह से हमारी कंट्री में जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है वो रखी गई। ठीक है, अब है मेन जो क्वेश्चन आता है, जब हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली उस टाइम पीरियड में आवर कंट्री, मैंने आपको बताया ना प्रॉब्लम क्या थी, आवर कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लैंग्विस्टिक ग्रुप्स, लैंग्वेज पॉलिसी। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारी कंट्री में कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की? लैंग्वेज पॉलिसी। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में? क्या लिखा गया है हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में? क्या लिखा गया है? दैट कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन सम लिस्ट ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, जिसको क्या लैंग्वेजेस कहा जाता है? शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, पार्ट 8। हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 8 में कुछ लिस्ट दी गई है लैंग्वेजेस की। ठीक है, कितनी है टोटल? 21 प्लस 1 हिंदी, टोटल कितनी होगी? 22 लैंग्वेजेस। इनको कहा गया है शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। इसका मतलब क्या है? हिंदी जो है दैट इज ऑफिशियल लैंग्वेज, Hindi is regarded as official. Hindi, one is Hindi. Hindi is regarded as official language. इसके अलावा हमारे इंडिया में हिंदी के अलावा 21 और लैंग्वेजेस हैं जिनको हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या दिया है? उनको रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब परमिशन, ठीक है, रिकॉग्नाइज, रिकॉग्निशन दी गई है। इसका मतलब कि अब कोई भी पर्सन अगर वो पंजाब में रहता है तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि उसको हिंदी आनी ही चाहिए।
ठीक है, पंजाब में रहता है तो मदर टंग उसकी पंजाबी मीडियम में भी वो अपने स्कूल, साउथ में अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है जहाँ पे तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कर्नाटका में कन्नड़ा है, ठीक है, अलग अलग मणिपुरी लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, तो पीपल आर फ्री टू अडॉप्ट एनी लैंग्वेज, ठीक है। तो गवर्नमेंट किसी को भी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो है कंपल्सरी, इट इज नॉट कंपल्सरी कि उन्होंने वही लैंग्वेज लेनी, ठीक है। तो इसलिए हमारी कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट की गई है, जिसके अकॉर्डिंग 22 लैंग्वेजेस को क्या कहा गया है, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस कहा गया है, ठीक है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि लैंग्वेज के रिलेटेड हमारी कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। आपको पता है हमारी कंट्री में लैंग्वेज से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, ठीक है। तो ये हम आगे, हम हिस्ट्री हमने पढ़नी है, पहले मैंने आपको ये पढ़ाया, इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे कि लैंग्वेज के रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आई, जब कंट्री, हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सामने कुछ प्रॉब्लम्स आई, तो उसके बाद किस तरह से फिर हमारी कंट्री में लैंग्वेज जो पॉलिसी है अडॉप्ट की गई, ठीक है। तो नो डाउट हर कंट्री में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हमारी कंट्री में प्रॉब्लम्स आई, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को प्रॉपर्ली मैनेज किया गया ताकि लैंग्वेज का जो इशू है, ताकि लोग लैंग्वेज के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, तो इसलिए हमारी कंट्री में कितनी ही लैंग्वेजेस हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेस यानी कि शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस माना है, परमिशन दी है, एंड पीपल दे कैन ऑप्ट, कोई भी अपनी मर्जी से लैंग्वेजेस हैं ऑप्ट कर सकते हैं, किसी के ऊपर कोई भी कंपल्शन नहीं। इट इज नॉट कंपल्शन कि जो साउथ इंडिया में है, आंध्र प्रदेश, उनको हिंदी सीखनी पड़ेगी, वो अपनी लैंग्वेजेस में, मतलब दे आर मच ट्रेन्ड। साउथ इंडिया में आप जाओगे ना, उन लोगों को सिर्फ अपनी लैंग्वेजेस आती हैं, तमिल तेलुगु आती है या फिर इंग्लिश आती है, हिंदी बहुत रेयर है कि हिंदी आती है, बट यू नो स्टिल हिंदी, हम हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है ना। और जो हमारी मेन लैंग्वेजेस हैं, मदर टंग लैंग्वेज, जैसे पंजाबी हम कहते हैं वो हमारी मदर टंग है, माँ बोली है ना, तो उसको भी हम सीखने से मना नहीं कर सकते। तो हम सपोज कितनी लैंग्वेज सीखते हैं, हम इंग्लिश भी सीखते हैं, हम हिंदी भी सीखते हैं, अपनी मदर टंग भी सीखते हैं, ऐसे ही हर स्टेट के जो लोग हैं वो अलग अलग लैंग्वेज सीखते हैं, लेकिन किसी के ऊपर लैंग्वेज के रिलेटेड कोई भी प्रेशराइज या किसी को कंपल्सरी जो है वो नहीं किया गया, ठीक है। तो इसके अलावा लास्ट जो है दैट इज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारी कंट्री में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि हमारी कंट्री जो है वो कौन सी है, कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल का मतलब क्या होता है, फेडरल, फेडरल का मतलब होता है सेंटर पूरी कंट्री को कंट्रोल करता है, सेंट्रल कंट्रोल, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल होल कंट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट होल कंट्री, एंड स्टेट गवर्नमेंट पर्टिकुलर स्टेट, जैसे पंजाब गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड फेडरल। पावर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेंटर एंड स्टेट। व्हेन पावर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 लेवल्स, सेंटर एंड स्टेट, इट इज कॉल्ड फेडरल। फेडरल का मतलब क्या होता है कि लेवल, गवर्नमेंट के 2 लेवल हैं, एक है सेंट्रल और दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फेडरल फॉर्म। पूरी कंट्री के लिए लॉ बनाने का राइट किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और पर्टिकुलर स्टेट के लिए लॉ बनाने का राइट किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट। इनमें गवर्नमेंट पार्टी से अलग अलग भी हो सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में एट प्रेजेंट बीजेपी है, ठीक है। हमारी कंट्री में अगर देखा जाए, पंजाब में कौन सी है, कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी। तो जरूरी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये हमारी कंट्री में सिस्टम क्या है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के 2 लेवल होते हैं, सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल, ठीक है।